Welcome back to my channel. So in this video we are going to study about the laws of motion. In previous chapter you have already studied about the kinematics. Kinematics means already you have studied about the motion, means why the means one dimension motion, two dimension motion, three dimension motion, means you have studied about the motion. That topic will come under the kinematics. In this video we are going to study about the reason behind that motion, means in this chapter we are going to learn why the object is at rest, why the object is in motion, why it is changing its direction, all those things, all those reason behind all those things we will study in this chapter. So first, in mechanics we are having three branches. One is the statics, kinematics and dynamics. Statics means we will study only about the rest object. In kinematics we will study only about the motion, acceleration, motion, all those things we will study in kinematics. But in dynamics we are going to study about the reason behind that motion, means why the object is at rest, why the object is in motion, why it is not changing its direction, if it is changing, why it is changing its direction. All those reasons we are going to study in this chapter. So the reason behind all those things is the force. So in this chapter we are going to study detail about the force. So in this chapter if we are studying about the force, means in our nature there exist so many different forces. So one is our contact force, another one is the non-contact force, weak forces and nuclear forces. So in our nature we are having so many different types of forces present in our nature. So all those forces we are not going to study, we will study only few forces. That is first we will take non-contact force, another one is the contact force, and another one is the weak forces, and fourth one is our nuclear force. In our nature we are having so many different forces. So in non-contact force we will study about the gravitational force, and electrostatic force, magnetic force. In contact force we will study about the tension, normal reaction, spring force. Different forces. Contact, with contact also we can apply force, without contact also we can apply the force. So now see here, if this object is at rest, so this will be in this same condition unless you apply some external force on this object. मतलब ये ऑब्जेक्ट इसी जगह पर रहना पसंद करता है, मतलब ये ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहना पसंद करता है जब तक हम इस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे. जब हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तब इसकी कंडीशन, जब इसकी स्टेट ऑफ कंडीशन जो है वो चेंज हो सकता है. मतलब इस ऑब्जेक्ट को हम मोशन में लाना चाहते हैं तो हम इस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. अगर हम फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो यही कंडीशन में रहना पसंद करता है. अगर समझिए कोई बॉल है, अगर वो बॉल मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है, वो रेस्ट पर रहना नहीं चाह, मतलब वो रुकना नहीं चाहता, वो वही मोशन में चलना पसंद करता है. मतलब दैट बॉल वांट्स टू बी इन द सेम स्टेट ऑफ मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी ना चेंज होगी, इट्स स्पीड विल नॉट बी इंक्रीज्ड नॉर डिक्रीज्ड नॉर इट्स डायरेक्शन विल बी चेंज. अगर हम उसकी स्टेट ऑफ कंडीशन को हम चेंज करना चाहते हैं तो हम उस पर फोर्स अप्लाई करना पड़ता है. तो ये मतलब फोर्स एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम अप्लाई करने पर ही किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन जो है वो चेंज हो सकता है. तो उसके लिए हम कांटेक्ट फोर्स भी लगा सकते हैं, नॉन कांटेक्ट फोर्स भी लगाते हैं. जो भी फोर्स है हम उस पर अप्लाई करेंगे. तो एक होता है कांटेक्ट फोर्स. कांटेक्ट फोर्स मीन्स एग्जांपल देखिए, अगर हमें डोर को क्लोज करना है, ओपन करना है, इन दोनों चीज़ों में हम क्या करते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं और हम अपने हाथों से हम डोर को पकड़कर हम उससे पुश या पुल करते हैं. मतलब हमारे हाथ जो है वो डोर के कांटेक्ट में आता है. डोर के कांटेक्ट पर आकर उस पर हम फोर्स लगाते हैं
तो उसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट फोर्स। और ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स जो है, हम विथआउट एक्चुअल कमिंग इन कॉन्टैक्ट देन ऑल्सो वी कैन अप्लाई फोर्स, दैट टाइप ऑफ फोर्स विल कॉल इट एज द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। अगर ये चॉपिस को अगर मैं छोड़ दिया तो क्या अगर इस चॉपिस को अगर हमने नीचे की तरफ अगर हमने इसको छोड़ दिया तो ये अर्थ इसको अट्रैक्ट करता है। अर्थ इसको अट्रैक्ट कैसे करता है, अर्थ आके इसे उठा के लेकर नहीं जाता है, ये अपने आप अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है। दैट टाइप ऑफ फोर्स विल कॉल इट एज द नॉन कॉन्टैक्ट। सिमिलरली अब मैग्नेट्स हैं, दो मैग्नेट हम रखेंगे या फिर आयरन पीसेस को हम मैग्नेट के पास लेके जाएंगे तो वो क्या करते हैं, वो नेल्स जो आयरन नेल्स होते हैं वो मैग्नेट को अट्रैक्ट करते हैं विदाउट एक्चुअली कमिंग इन कॉन्टैक्ट, देन ऑल्सो इट इज़ अप्लाइंग सम फोर्स ऑन दैट आयरन नेल्स, सो बोथ आर अट्रैक्टिंग। सो ये जो विदाउट कॉन्टैक्ट वाले जो फोर्स होते हैं उसे हम कहते हैं नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। इसमें हम पढ़ेंगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फोर्स। ये जो फोर्स है ये हम डिटेल में स्टडी करेंगे सेकेंड पीयूसी में, मतलब सेकेंड ईयर में हम इसे पढ़ेंगे डिटेल में। ये ग्रेविटेशन जो है इसके ऊपर भी एक सेपरेट चैप्टर है, उसे हम पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर में ही हम पढ़ेंगे, बट इसका एक सेपरेट चैप्टर है और ये सारे फोर्सेस हम इसी चैप्टर में पढ़ेंगे। ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ये न्यूक्लियस के अंदर ही हम देख सकते हैं, मतलब ये दिस न्यूक्लियर फोर्स एग्जिस्ट ओनली इनसाइड द न्यूक्लियस एंड इट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन आवर नेचर। So this topic also we will study in second PUC, and this weak nuclear force we will study in chemistry, that is van der Waals equation. In all those cases we are going to study about the weak forces. This is not so important in this chapter. We are going to deal about these forces and this gravitational force. So first we will study about the gravitational force. First we will try to understand what is force, and after that we are going to study about the laws of motion. So first I'm going to explain you about the gravitational force. First, gravitational force. Gravitational force is nothing but it is the weight. In our general language what we will call it is our weight. Suppose if this is a body which is having some mass m, so this object if it is present in our nature means earth is attracting it towards the center. Suppose if this is our earth, तो अर्थ जो है इस मास को अट्रैक्ट करता है, कहाँ पर अट्रैक्ट करता है, तो इसका आंसर है अर्थ इज अट्रैक्टिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। मीन्स दिस अर्थ इज अट्रैक्टिंग दिस ऑब्जेक्ट दिस विच इज हैविंग सम मास एंड दिस ऑब्जेक्ट इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो इसके ऊपर कुछ फोर्स लगता है, इस फोर्स को हम कहते हैं वेट, एंड दिस वेट को हम कैलकुलेशन करते हैं mg, w is equals to mg. दिस वेट इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स। ओनली दिस मच concept we will study in this chapter. Detail how much amount of force, its calculation, all those things we will study detail in this separate chapter, that is gravitational force. So next after that we will talk about the contact forces. In contact force first we will take the normal reaction. First we will study about normal reaction. Suppose if this is our surface, if this is our surface, on this surface if I keep some object which is having some mass m, see this choppice is placed here. This choppice is not attracting towards the center, मतलब अर्थ इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम यहाँ पे मास प्लेस कर रहे हैं इस सरफेस पर, तो ये मास जो है अर्थ इसको अट्रैक्ट कर रहा है पर अर्थ के अंदर नहीं जा रहा है, ये सरफेस के अंदर तो नहीं जा रहा है, ये ब्लॉक मतलब ये सरफेस के ऊपर है, बट इसके ऑब्जेक्ट के ऊपर mg अमाउंट ऑफ फोर्स लग रहा है towards the center of the earth. Means earth is applying force on this object and it is attracting with how much force, mg amount of force, but this object is not going inside the surface because this surface is also applying some force on this object, and this force will call it as the normal reaction, and this normal reaction will represent it by the n. Normal means perpendicular. Normal means what? Perpendicular. And this normal reaction always
एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। सो अगर ये सरफेस है तो ये सरफेस के परपेंडिकुलर ही अप्लाई होता है, ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन को हम समझने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। हम अगर अर्थ के सरफेस पर चल रहे हैं, हम अर्थ के ऊपर, हम ज़मीन के ऊपर अगर हम पैर रख रहे हैं तो हमारे पैर के ऊपर भी अर्थ अपना नॉर्मल जो सरफेस है, अर्थ का जो सरफेस है वो हम पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, अर्थ भी हम पर कुछ फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो उसी वजह से हम एक स्टेप हम आगे रखेंगे तो हम उसके वजह से हम जो पीछे जो हमारा स्टेप है वो हम उसको आगे रख सकते हैं, तो हम चल सकते हैं। वॉकिंग इज ओनली बिकॉज ऑफ द नॉर्मल रिएक्शन ऑफ द सरफेस। अगर हम और एक एग्जांपल है, अगर हम पानी के ऊपर चलना चाहते हैं, पानी के ऊपर अगर हम पैर रखेंगे तो पानी जो है हमें नॉर्मल रिएक्शन का जो फोर्स है वो हम पर एक्ट नहीं करता है, तो उसी वजह से हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते हैं। हम सरफेस पर जैसे चल सकते हैं वैसे है हम पानी के ऊपर नहीं चल सकते हैं, क्योंकि पानी जो है हम पर वो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स नहीं लगा सकता। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन। अब ये चॉपीस हमने हाथ पर रखा है, ये चॉपीस को अर्थ अट्रैक्ट कर रहा है, mg अमाउंट ऑफ फोर्स वेट है, वो अपना फोर्स लगा रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा है, पर ये हाथ से नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये हाथ जो है उस नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है इस चॉपीस पर, तभी ये चॉपीस हाथ से नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि ये जो हाथ है इस पर नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है। ये होता है नॉर्मल रिएक्शन एंड दिस ऑलवेज अप्लाइज परपेंडिकुलर टू द surface and in our nature always force exist in pair action and reaction। अब देखिए ये जो सरफेस, ये जो ब्लॉक है ये भी अर्थ के ऊपर फोर्स लगा रहा है और ये सरफेस जो है वो भी इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है। ये जो फोर्स लगा रहा है वो है mg और ये जो फोर्स लगा रहा है उसे हम कहते हैं नॉर्मल रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट द नॉर्मल रिएक्शन। नेक्स्ट वी विल स्टडी अबाउट द स्प्रिंग फोर्स और एल्स वी विल कॉल इट एज द टेंशन। Spring force later we will study. First we will take tension, not tension, I will study about the tension. Suppose if this is our one surface, for this surface if we are held some mass, ये मास है, हम इस मास को हैंग कर रहे हैं, इसकी सपोर्ट से हम इसको हैंग कर रहे हैं, तो ये जो बॉडी है इसके पास मास है। अगर मास है तो अर्थ इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है विथ हाउ मच फोर्स, mg अमाउंट ऑफ फोर्स इट इज अट्रैक्टिंग टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, बट दिस ऑब्जेक्ट विल नॉट फॉल्स डाउनवर्ड। ये ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिर रहा है, क्योंकि इससे ऊपर की तरफ भी एक फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक ऊपर की तरफ भी एक फोर्स है और उस फोर्स को हम कहते हैं टेंशन। दिस इज द टेंशन। इस वायर में, इस स्प्रिंग में, इस रॉड में जो फोर्स है उसे हम कहते हैं टेंशन। जो इस मास को जो होल्ड कर रहा है उसे हम कहते हैं टेंशन। इस मास के ऊपर दो तरह के फोर्स लग रहे हैं, एक है mg, एक है टेंशन। अगर टेंशन कम होगा तो ये बॉडी अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होगा, अगर ये टेंशन ज़्यादा है तो ये नीचे नहीं गिरेगा। ये होता है टेंशन। आप इजीली समझ सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर हम हैंग करते हैं, हम उसको कुछ फोर्स अप्लाई करते हैं, हम उसको कुछ ऐसे होल्ड करेंगे तो ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, मतलब ये नीचे नहीं गिरेगा, ये ऐसे ही हैंग होगा। अगर हम ये फोर्स को हटा देंगे, इस फोर्स को हम वीक करेंगे या फिर हटा देंगे तो क्या होता है, ये ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ अट्रैक्ट होता है। तो उस चीज़ को हम कहते हैं टेंशन, जो एक ऑब्जेक्ट को होल्ड कर सकता है, और इस वायर में जो है उसे हम कहते हैं टेंशन। सो दिस टॉपिक when we are solving problems you can understand what is tension, what is the direction। तो अगर हम डायरेक्शन को हम समझना चाहते हैं तो what is the direction of that tension means here if this is the mass और इसे हम यहाँ पर होल्ड कर रहे हैं तो हम टेंशन अब देखना चाहते हैं, तो टेंशन ऑलवेज अपोजिट टू द ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे हम उसको टेंशन फाइंड आउट करना चाहते हैं तो ये है उसका डायरेक्शन टी। और अगर हम इस पॉइंट पर अगर हम टेंशन देखना चाहते हैं तो ये है उसका डायरेक्शन टी, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, ऑलवेज अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। अगर यहाँ पर कुछ ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम उसे कुछ लगाते हैं, कुछ दूसरा ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर हम लगाएंगे
तो इस स्ट्रिंग में अगर हम टेंशन की बात करें तो ये है डायरेक्शन ऑफ टेंशन, और यहाँ पे बात करेंगे तो ये है टेंशन। तो ये जो टेंशन है सेम है, इससे हम, और ये जो टेंशन से सेम, इसे हम कहते हैं T1 और इसे हम कहते हैं T2। अगर स्ट्रिंग को हम बदल देते हैं तो टेंशन बदल जाता है। यहाँ इस वायर में, पूरे वायर में टेंशन सेम होता है। यहाँ पे इसका डायरेक्शन नीचे और यहाँ पे इसके डायरेक्शन ऊपर, यहाँ पे इसके डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट, यहाँ पर भी डायरेक्शन अवे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। बट दिस टेंशन एंड दिस टेंशन इज डिफरेंट बिकॉज स्ट्रिंग हैज़ बीन चेंज। अगर स्ट्रिंग चेंज होता है तो टेंशन चेंज होता है, स्ट्रिंग सेम रहेगा तो टेंशन सेम रहेगा। ये होता है टेंशन, डायरेक्शन ऑफ द टेंशन। नेक्स्ट हम क्लास में इसके कैलकुलेशन के बारे में स्टडी करेंगे। और अब नेक्स्ट हम आएंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। अरे फ्रिक्शनल फोर्स जो है ना, फ्रिक्शनल फोर्स को भी हम डिटेल में स्टडी करेंगे। जब हम चलते हैं तो हमारा चप्पल जो है घिसता है, और कार को हम ब्रेक लगाते हैं, उस चीज़ में भी फ्रिक्शन का काम होता है। मतलब अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स जो भी अप्लाई होता है उसे हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स। कार आगे की तरफ मूव करना चाहते हैं पर हम ब्रेक लगा के उसे हम रोकना चाहते हैं। ये जो फ्रिक्शन का काम है ये अपोजिट काम करता है फोर्स के डायरेक्शन। अगर फोर्स इस डायरेक्शन में है तो फ्रिक्शन उल्टा लगाता है। फ्रिक्शन का फोर्स जो है वो अपोजिट होता है, तो उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स, वो सब हम डिटेल में अभी नेक्स्ट क्लासेस में पढ़ेंगे। तो अब हम स्टडी करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन्स फर्स्ट law of motion, or else this law of motion also will call it as the law of inertia. ये जो न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ है, वी आर हैविंग थ्री न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इन दैट वी आर गोइंग टू स्टडी न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है उसे हम पढ़ सकते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ है ये हमें बताता है फोर्स की डेफिनेशन, मतलब फोर्स क्या होता है ये बताता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। एंड इन दिस न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इट गिव्स द मीनिंग ऑफ दिस इनर्शिया। तो अब हम इनर्शिया को हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, इनर्शिया क्या होता है, व्हाट इज इनर्शिया। इनर्शिया इज द इनहेरेंट प्रॉपर्टी, और एल्स इनर्शिया विल कॉल इट एज द inability to change the state of condition. इनर्शिया क्या होता है, what is inertia? Suppose if this is the object and if this object is placed here, it will be in the same condition unless if you are applying any force. अगर हम 10 साल बाद भी अगर हम इस चौपिस को देखेंगे तो ये वही कंडीशन में रहेगा। जब अगर हम इस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तभी इसकी पोजीशन जो है, इसकी कंडीशन जो है वो चेंज हो सकता है। मतलब जो ऑब्जेक्ट, अगर यह ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है तो रेस्ट पर ही रहना पसंद करता है, कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना पसंद करता है जब तक हम उस पर फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे। और जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तभी उसकी कंडीशन जो है वो चेंज होता है। मतलब मूविंग ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर लाने के लिए भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और जो ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है उसे हम मोशन में लाना चाहते हैं तभी हम फोर्स को यूज़ करते हैं, मतलब फोर्स को हम अप्लाई करते हैं। और अगर किसी ऑब्जेक्ट की अगर हमें वेलोसिटी को इंक्रीज़ करना है, मतलब स्पीड को हमें इंक्रीज़ करना है या फिर डिक्रीज़ करना है, तो उस चीज़ में भी हम फोर्स की यूज़ करते हैं। और जो है ऑब्जेक्ट की, किसी भी ऑब्जेक्ट अगर कुछ डायरेक्शन में वो मूव कर रहा है, अगर उसकी डायरेक्शन को हम चेंज करना चाहते हैं तभी हम फोर्स को अप्लाई करते हैं। तो इनर्शिया जो है इनएबिलिटी है, मतलब जो चेंज ना होना, जो चेंज हम नहीं होते वो जो वाला कंडीशन है उसे हम कहते हैं इनर्शिया। इनर्शिया को समझने के लिए आप देखिए, अब साइकिल है, वी कैन ईज़िली मूव दैट साइकिल और वी कैन ईज़िली स्टॉप दैट साइकिल। अगर साइकिल रुका हुआ है तो हम उसको ईज़िली चला भी सकते हैं और उससे हम रुका भी सकते हैं, क्योंकि
साइकिल के पास जो है वो मास कम होता है। अगर हम ट्रेन को रोकना चाहते हैं तो हम नहीं रोक सकते। अगर ट्रेन रेस्ट पर है तो हम उसे धक्का लगा के हम उसे मोशन में भी नहीं ला सकते, क्योंकि ट्रेन के पास मास जो है बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू साइकिल। जो मतलब ये ट्रेन के पास इनर्शिया ज़्यादा है, साइकिल के पास इनर्शिया कम है। साइकिल के पास इनर्शिया कम है, ट्रेन के पास इनर्शिया ज़्यादा है। ये इनर्शिया किस चीज़ पर डिपेंड होता है? ये इनर्शिया डिपेंड होता है मास पर। जिसकी मास ज़्यादा होती है उसकी इनर्शिया भी ज़्यादा होती है, और जिसकी मास बहुत कम होती है उसकी इनर्शिया भी बहुत कम होती है। मतलब जो साइकिल जो है हम इजीली उसको हम चला सकते हैं, रोक सकते हैं, मतलब उसकी कंडीशन जो है हम इजीली चेंज कर सकते हैं, तो उसका मतलब है इनर्शिया कम है। ट्रेन हम इसे इजीली चेंज नहीं करते हैं, मतलब हम उसे मोशन में या फिर उसे रेस्ट में लाना पॉसिबल नहीं है, तो उसका इनर्शिया बहुत ज़्यादा है। तो ये इनर्शिया मास पर डिपेंड करता है, तो दैट इज़ द इनर्शिया। ये फर्स्ट लॉ यही कहता है, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ये हमें यही समझाता है कि किसी भी ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पर है, द ऑब्जेक्ट विच इज़ एट रेस्ट वांट्स टू बी, इट विल बी एट रेस्ट कंडीशन। इफ़ इट इज़ इन मोशन इट विल बी इन मोशन विथ कॉन्स्टेंट स्पीड, इट विल नॉट चेंज इट्स डायरेक्शन, इट विल नॉट चेंज इट्स speed, it will move with constant velocity until and unless an external force is applied on that object। अगर हम उस ऑब्जेक्ट पर अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तब तक वो वही कंडीशन वही स्टेट में रहता है। ये समझाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ इज नथिंग अबाउट द फोर्स, मतलब फोर्स ही एक ऐसी प्रॉपर्टी है, एक ऐसी वजह है, एक ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी है जिसको हम लगाने पर किसी भी ऑब्जेक्ट की कंडीशन जो है वो चेंज होता है। तो ये है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ। न्यूटन सेकेंड लॉ वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो, सो स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए। थैंक यू।